Good afternoon. Good afternoon, my dear students. Welcome to Gradeup classes. Myself Ankur Tomar, and in this session, I am going to discuss with you all about quadratic equations. In this session, my dear students, we will discuss some questions based on quadratic equation which have been asked in previous year BBA and HM entrance exams, my dear students. ठीक है? And you have to listen to me very carefully, my dear students. ठीक है? Also, tomorrow onwards, we are going to start a mini series based on lines, angles and triangles, my dear students. Same time is, that is 3:30 PM. तो कल से हम स्टार्ट करेंगे लाइंस, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स, और इस वाले मिनी सीरीज में that will be based on lines, angles and triangles. I am going to discuss with you all basic concept and applications of those concepts with the help of questions based on lines, angles and triangles. So try not to miss even a single session of these mini series, my dear students. ठीक है, चलिए तो let's start today's session that is based on quadratic equations. और उसके लिए फटाफट सबसे पहले please do like and share this session as maximum as possible with your friends within your group, my dear students. Let's start today's session based on quadratic equations. उससे पहले let's take a look on the ongoing batch in Gradeup. So enrollments are on for the batch a champion course for CUCET 2021. So join this batch as soon as possible. Recently batch launch हुआ है हमारा and enrollments are on for this batch. So join this batch as soon as possible, my dear students. Also, a comprehensive course for BBA and IPM 2022. So enrollment are also on for this batch. If you are targeting next year BBA and IPM 2022, then join this batch as soon as possible without any delay, my dear students. Chaliye, so let's start today's session that is based on quadratic equation. Let me take a side. Or initially I'm going to discuss with you some basic concept of quadratic equations, and then we will discuss some important questions based on quadratic equations which have been asked in previous year entrance exams. ठीक है, चलिए let's start today's session that is based on quadratic equations. So first of all, my dear students, what is a quadratic equation? What is the general form of a quadratic equation? So general form of a quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0. So ax square plus bx plus c equals to 0 is the general equation of a quadratic, the general form of a quadratic equation, my dear students. Now, how do we find out the roots of a quadratic equation? How do we find out the roots of a quadratic equation? तो आई थिंक जो दो बेसिक मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करने के, वो हम सबको आते हैं, हम सब लोग डे 1 से क्लास में पढ़ते हैं. एक तरीका हमारे पास था कि सर ए और सी का जो भी प्रोडक्ट है उसको हम ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करते हैं जिनका सम या डिफरेंस किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के इक्वल होता है. तो ये वाला तरीका है. दूसरा एक श्रीधराचार्य रूल हमारा होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. इस तरीके से भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट कर लेते हैं. एक बार प्लस लेके चलेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी इक्वेशन का एक रूट, माइनस लेके चलेंगे तो x की दूसरी वैल्यू इक्वेशन का अनदर रूट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी. तो मैंने बोला दो तरीके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करने के हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. पहला तरीका हमारा क्या था, ए और सी का जो भी प्रोडक्ट है उसको हम ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करते हैं जिनका सम या डिफरेंस किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी के इक्वल होता है. ठीक है. दूसरा तरीका हमारे पास था कि अगर हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमारा होता है माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। एक बार प्लस लेके चलेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी, माइनस लेके चलेंगे तो x की दूसरी वैल्यू आएगी। ठीक है, एक और तरीका है जो आज वाले सेशन में आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, और फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पर ध्यान से तरीका सुनो। तरीका ये था, सपोज इफ आई आस्क यू व्हाट विल बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना था 1, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 5 और c की वैल्यू कितनी थी 6। तो सबसे पहले मैं रूट्स की बात नहीं कर रहा हूं, सबसे पहले हम ना दो नंबर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम फोकस करेंगे दो नंबर पे। इन दो नंबर से रूट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फोकस अपॉन टू नंबर्स। ठीक है, तो जिन दो नंबर की मैं आपसे बात कर रहा हूं उनका प्रोडक्ट पहले हम कैलकुलेट करेंगे। क्या होगा उनका प्रोडक्ट? प्रोडक्ट हमारा होता है a और c का प्रोडक्ट, तो a इंटू सी। तो इस केस में कितना था प्रोडक्ट मेरा 6। ठीक है, फिर हम उनके सम की बात करेंगे। इस केस में सम कितना था हमारा? सम होता है माइनस b। इस केस में सम कितना है -5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, नतरेश बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपसे किसी भी बीबीए एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप बात करते हैं तो दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन एनी टाइप ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। ओके, सो प्रोडक्ट कितना हो गया 6, सम कितना हो गया -b दैट इज -5। सम इज नेगेटिव, प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। व्हाट डज इट मीन? इट मीन बोथ नंबर्स विल बी नेगेटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हमें दो ऐसे नंबर पे फोकस करना है जिनका प्रोडक्ट हो 6 और सम हो 5, तो -3 एंड -2। ठीक है, ये तो नंबर्स थे। नंबर्स के बाद अगर हमें रूट्स कैलकुलेट करने हैं तो रूट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? रूट्स हमारे पास होते हैं, नंबर को कर देते हैं कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड, तो -3/1 -2/1। तो व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? -3 एंड -2। इस तरीके से भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फोकस अपॉन the product of two numbers. And how do we find out the product of two numbers? Product of a and c. In this case a is 1, c is 6, so product of a and c is 1 into 6, that is 6. What will be the sum of the number? Sum of the number will be opposite sign of coefficient of x. In this case coefficient of x is 5, so what will be the sum of the numbers? -5. Now we have to find out those two numbers whose product is 6 and sum is -5. Product is positive. What does it mean? Both numbers are positive or both numbers will be negative. But sum is negative, so both numbers will be negative. Now we have to focus upon those two numbers whose product is 6 and sum is 5, 3 and 2. So what are the values of those two numbers? -3, -2. अब उन दोनों नंबर से how do we find out the roots? अगर हम नंबर को कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करते हैं तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द रूट्स। तो इन दिस केस कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, तो व्हाट विल बी द रूट्स? -3/1 -2/1, दैट इज -3 -2। तो एक ये भी तरीका हमारे पास होता है माय डियर स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने का। एम आई राइट? चलिए, ऑल्सो और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है हमारी रूट्स को लेकर वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। We all know if alpha and beta are the roots of a quadratic equation, if alpha and beta are the roots of a quadratic equation, ax square plus bx plus c equals to 0, then what will be the sum of the roots? Sum of the roots alpha plus beta बच्चों हमारा कितना होता है? -b/a। Sum of the roots alpha into beta हमारा कितना होता है? c/a। ठीक है, तो if alpha and beta are the roots of a quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0, तो इसमें sum of the roots alpha plus beta is -b/a, product of the roots alpha into beta is c/a. Also if the roots of a quadratic equation is given, then how do we construct a quadratic equation? So if alpha and beta are the roots of a quadratic equation, then quadratic equation can be constructed as
x square minus sum of the roots into x plus product of the roots is equals to 0. So if we know the sum of roots and product of roots of a quadratic equation, this is the way how do we construct a quadratic equation. So if sum of the roots alpha plus beta, product of the roots alpha into beta, so what will be the quadratic equation? X square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equals to 0. And also we have discussed that if alpha and beta are the roots of equation ax square plus bx plus c equals to 0, then alpha plus beta is minus b upon a and alpha into beta is c upon a. यहाँ से we can also conclude that alpha plus beta minus b upon a does not depend on the constant term c and alpha into beta c upon a does not depend on the coefficient of x b. I mean to say अगर किसी भी quadratic equation में हम सिर्फ कांस्टेंट टर्म c को चेंज करते हैं तो सम ऑफ द रूट्स विल रिमेन सेम और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ x को चेंज करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल रिमेन सेम. ठीक है, चलो दूसरा एक और मोर कॉन्सेप्ट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हाउ डू वी comment on the nature of the roots of a quadratic equation, my dear students? I mean to say, in case of ax square plus bx plus c equals to 0, how do we comment on the nature of the roots of a quadratic equation? तो in ax square plus bx plus c equals to 0, b square minus 4ac ये हमारा कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. माय डियर स्टूडेंट्स, b square minus 4ac ये हमारा कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माय डियर स्टूडेंट्स. And how do we comment on the nature of the roots? We can comment on the nature of the roots of a quadratic equation with the help of the discriminant. How come? Case first. If discriminant of a quadratic equation is negative, that is less than 0, तो इस केस में रूट्स हमारे कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स. If discriminant of a quadratic equation is equals to 0, इस केस में रूट्स हमारे क्या होते हैं? रियल एंड इक्वल. इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इस केस में रूट्स हमारे कैसे होते हैं? रियल, रैशनल एंड डिस्टिंक्ट. Real, rational and distinct. And case fourth, if discriminant is greater than 0 but not a perfect square. The roots are real, irrational and distinct. ठीक है, दिस इज द वे हाउ डू वी कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, माय डियर स्टूडेंट्स. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नेगेटिव, इस केस में रूट्स हमारे कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी. इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल. इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स हमारे होंगे रियल, रैशनल एंड डिस्टिंक्ट. एंड इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इन दिस केस रूट्स आर रियल, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट. तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हैं जो हमें पता होना चाहिए. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू सम क्वेश्चंस, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन quadratic equations, my dear students. Please listen to me very, very carefully. Let's discuss first question of today's session. In question number 1, he is asking what are the roots of the quadratic equation 4x square plus 6x minus 18 is equals to 0. तो शुरू वाले जो दो मेथड्स हैं वो तो हम सब लोग जानते हैं, बट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ थर्ड मेथड जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया. तो ये था हमारा 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0. तो प्रोडक्ट कितना था हमारा?
-72. Am I right? Product is -72. Product negative 72 है तो what will be the difference? -6. Difference negative, product negative, तो definitely one number will be positive, another number will be negative. और डिफरेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला नंबर पॉजिटिव वाले नंबर से बड़ा होगा. Am I right? अब हमें दो ऐसे नंबर पे फोकस करना है जिनका प्रोडक्ट था 72, डिफरेंस था 6, तो 12 and 6. 12 and 6. तो नंबर क्या निकल के आया? 12 and 6. तो हाउ डू वी फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्या पढ़ा था हमने कि सब नंबर को कोफिशिएंट ऑफ x से कर देते हैं डिवाइड. तो -12/4 and 6/4. तो -3 and 3/2. -3 and 3/2 are the roots of this quadratic equation, my dear students. So option C is the correct answer of question number 1. Are you getting my point? I am repeating once again. 4x square plus 6x minus 18 is equals to 0. So what are the product of two numbers? Product of two numbers will be 4 into -18, that is -72. प्रोडक्ट नेगेटिव है तो हम नंबर के डिफरेंस की बात करेंगे. तो व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स? अपोजिट साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि -b, that is -6. Now we have to find out two numbers whose product is negative and difference is also negative. So one number will be positive, another number will be negative. And obviously बात है, difference is negative, then नेगेटिव वाला नंबर विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ पॉजिटिव वाला नंबर. ठीक है, तो दो नंबर हमें चाहिए जिनका प्रोडक्ट है 72 और डिफरेंस है 6. तो 12 and 6. 12 6 72, 12 6 72 and 12 minus 6 is equals to 6. So what will be the first number? -12. What will be the second number? +6. Now how do we find out the roots of the quadratic equation? सर इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x से. तो इन दिस केस क्या था हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x? 4. तो क्या क्या होंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो -12/4 दैट इज -3 and 6/4 that is 3/2. So option C must be the correct answer of question number 1. Natresh बच्चे, this is the method of calculating roots of a quadratic equation. तो एक तरीका है रूट्स कैलकुलेट करने का. तो अकॉर्डिंग टू अस जो हम -12 और 6 हमने कैलकुलेट किए थे, दे आर नॉट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बेसिकली पहले हम दो नंबर कैलकुलेट करते हैं और उन नंबर से हाउ डू वी फाइंड आउट द रूट्स? बाय डिवाइडिंग दोज नंबर विद द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? -3 and 3/2. So option C is the correct answer of question number 1. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं. पढ़ो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. और जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, उन्हीं पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन था. तो प्लीज एक बार सब लोग ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 और देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में. सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट इफ a and b आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. थैंक यू नतरेश बच्चे. If a and b are the roots of a quadratic equation, ax square plus bx plus c equals to 0. So my dear student, if a and b are the roots of the equation ax square plus bx plus c equals to 0, then what will be the sum of roots a plus b? कितना हो गया हमारा sum of roots a plus b? That is -b upon a. And what will be the product of the roots? That is a into b. ये हमारा कितना हो गया? c upon a. Am I right? Are you getting my point? So if a and b are the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c, then what will be the sum of the roots a plus b minus b upon a? And what will be the product of the roots a into b? C upon a. Now we have to construct a quadratic equation which have roots ab plus a plus b and ab minus a minus b. तो अब हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके दो रूट्स हमें दे रखे थे. कौन कौन से? ab प्लस a प्लस b एंड ab माइनस a माइनस b. तो और हम जानते हैं कि अगर हमें रूट्स गिवन है तो हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट. हाँ जी अनंता बच्चे, क्या समझ नहीं आ रहा है बताओ. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. हाँ जी क्वेश्चन नंबर 2 में तो अभी मैंने कुछ किया ही नहीं, तो आपको समझ क्या नहीं आ रहा है जब मैंने कुछ किया ही नहीं है. मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2,
A and B are the roots of the equation ax square plus bx plus c equals to 0. We have just discussed with you how do we find out the sum of roots of a quadratic equation minus b upon a. तो a plus b मेरा कितना हो गया minus b by a. How do we find out the product of the roots of a quadratic equation? तो a into b मेरा कितना हो गया c upon a. Now we have to construct a quadratic equation whose roots are ab plus a plus b and ab minus a minus b. And we have just discussed if we know the sum of the roots of a quadratic equation and product of the roots of a quadratic equation, then we can easily construct a quadratic equation. So first of all we will focus upon, ठीक है अनंता बच्चे, आगे वो आएगा तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फोकस अपॉन सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक रूट हमारा था ab प्लस बी, दूसरा रूट हमारा था ab माइनस a माइनस बी. तो व्हाट विल बी द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज 2ab. और कितना गिवन था मुझे 2ab. अगर a इंटू बी सी अपॉन a है तो 2ab कितना होगा 2 इंटू सी अपॉन a. एम आई राइट? सम आ गया. नाउ वी विल फोकस अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो एक हमारा था ab प्लस बी, एम आई राइट? दूसरा हमारा था ab माइनस a प्लस बी, एम आई राइट? तो ये हमारा हो गया ab स्क्वायर माइनस a प्लस बी का स्क्वायर. a इंटू बी मेरा कितना है c बाई ए, तो c अपॉन a का स्क्वायर माइनस a प्लस बी मेरा कितना है माइनस b अपॉन a, तो माइनस b अपॉन a का स्क्वायर, दैट इज c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. ये हमारे पास क्या निकल के आया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. एंड इफ वी नो the sum and product of the roots of a quadratic equation, we can easily construct the quadratic equation, my dear students. चलिए क्या होगी quadratic equation? x square minus sum of the roots into x. तो क्या था मेरा sum of the roots 2 into c upon a into x plus product of the roots. क्या था हमारा product of the roots? c square minus b square upon a square, my dear student. That is, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ac(x) प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. तो आई थिंक a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ac(x) प्लस c. तो आई थिंक ऑप्शन बी मस्ट बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, माय डियर स्टूडेंट्स. देखो ध्यान से सब लोग क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 के किसी भी स्टेप में कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क. हाँ जी, आई होप क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो इफ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माय डियर स्टूडेंट्स, देन वी विल फोकस अपॉन the sum of roots of that quadratic equation and the product of roots of that quadratic equation. तो वही मैंने इस वाले क्वेश्चन में किया. इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ a एंड b. फिर हमने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ a, b एंड c. एंड इफ वी नो द सम ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन and product of roots of a quadratic equation, so we can easily construct the quadratic equation. So in this case option B is the correct answer of question number 2. Let's discuss another question, question number 3. पढ़ो ध्यान से question number 3. Let's see कि question number 3 में क्या पूछ रहा है, क्या दे रखा है. Please first read question number 3 very very carefully, my dear students. Question number 3 says that if the quadratic equation px square
if the quadratic equation px square plus qx plus r equals to 0 has its roots as sin theta and cos theta, ठीक है, तो रूट्स क्या थे इसके, sin theta and cos theta, and we know how do we find out the sum and product of the roots of a quadratic equation. तो क्या होगा, sum of root sin theta plus cos theta, ये हमारा होगा माइनस बी अपॉन ए दैट इज माइनस क्यू अपॉन पी, और क्या होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट sin थीटा cos थीटा, c अपॉन ए दैट इज r अपॉन पी. एम आई राइट? ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन थी px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल्स टू 0, रूट्स हमारे थे sin थीटा एंड cos थीटा. तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स sin थीटा प्लस cos थीटा हमारा कितना होगा, माइनस b अपॉन a दैट इज माइनस q अपॉन p, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट sin थीटा इनटू cos थीटा हमारा कितना होगा, r अपॉन p. ये हम सब जानते हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन p q एंड r फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x. ठीक है, तो हमें p और r के बीच में रिलेशन क्या निकल के आएगा वो कैलकुलेट करके बताना था. हाउ डू वी फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन p q एंड r विद द हेल्प ऑफ sin थीटा cos थीटा. So we all know, my dear student, that sin theta plus cos theta square is equals to sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta cos theta. Am I right? Sin theta plus cos theta square is equals to sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta cos theta. Am I right? Sin theta plus cos theta is given as minus q upon p. तो माइनस क्यू अपॉन पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, एंड प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा कितना होता है, आर अपॉन पी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस क्यू अपॉन पी, साइन थीटा इंटू कोस थीटा आर अपॉन पी, एंड वी नो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा. तो sin थीटा प्लस cos थीटा मुझे कितना गिवन था, माइनस क्यू अपॉन पी, तो माइनस क्यू अपॉन पी का स्क्वायर इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, प्लस 2 sin थीटा cos थीटा कितना होता है, r अपॉन पी. इसको सॉल्व कर देंगे, यहीं से हमारा आंसर निकल जाएगा. तो क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2r अपॉन पी इज इक्वल्स टू 1. एम आई राइट? तो क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2r अपॉन पी इक्वल्स टू 1. तो अगर मैं पी स्क्वायर को एलसीएम ले लूं तो क्यू स्क्वायर माइनस 2pr, क्यू स्क्वायर माइनस 2pr इक्वल्स टू पी स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2rp. क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2rp, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2rp. तो आई थिंक ऑप्शन सी must be the correct answer of question number 3, my dear students. देख लो ध्यान से सब लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो सम ऑफ द रूट्स हम पढ़ चुके हैं. दैट इज माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी हम पढ़ चुके हैं दैट इज सी अपॉन ए. तो उसी प्रॉपर्टी का हम इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यूज करके आंसर कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं. तो सम ऑफ द रूट sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस q अपॉन p, प्रोडक्ट ऑफ द रूट sin थीटा इनटू cos थीटा इज r अपॉन p, एंड वी नो sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा. यहां से बड़ी आसानी से रिलेशनशिप कैलकुलेट कर सकते हैं बिटवीन p q एंड r. तो आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल्स टू 2rp. चलिए फोर्थ पे चलते हैं. The sum of a fraction and 3 times its reciprocal is 19/4. What is the fraction? तो चाहो तो आप इसमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, उससे भी मैं करके दिखा दूंगा. नहीं तो ऑप्शंस की हेल्प से करेंगे तो भी मेरे ख्याल से करना बड़ा आसान है. अदरवाइज गिवन क्या था, क्वेश्चन ये था द सम ऑफ अ फ्रैक्शन मैंने ले लिया x अपॉन वाई, the sum of a fraction and 3 times its reciprocal, यानी कि x upon y plus 3 times of y upon x. ये मुझे कितना गिवन था, 19/4. Am I right? I'm repeating once again. The sum of a fraction मैंने ले लिया x upon y,
तो द सम ऑफ अ फ्रैक्शन एंड 3 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, तो x अपॉन वाई प्लस 3 टाइम्स ऑफ y अपॉन x इज गिवन एज 90/4 और हमें फ्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। तो फ्रैक्शन को अगर मैं t ले लूं तो एक तरह से t प्लस 3 अपॉन t इज गिवन एज 19/4। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और वहां से हम t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। करके दिखा देता हूं, बट जैसे मैंने बोला कि उससे भी आसान तरीका था, इसको सीधा हम ऑप्शंस की हेल्प से भी सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, बट मैं एक बार इससे करके दिखा देता हूं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया टी स्क्वायर प्लस 3t, सॉरी हाँ जी, टी स्क्वायर प्लस 3t टी स्क्वायर प्लस 3 माइनस 19/40 इज इक्वल्स टू 0 है ना। तो टी स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 19/40 और टी स्क्वायर प्लस 3 माइनस 19/40 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 4t स्क्वायर माइनस 19t प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो 4t स्क्वायर माइनस 19t प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बस यहां से फिर से वही करो कि सर 12 4 जा 48, तो प्रोडक्ट हमारा कितना था, 48 था, तो सम कितना होगा 19, 3t था बच्चे, सॉरी नहीं 3t नहीं होगा ना बच्चे, t प्लस 3t। अच्छा 3/t कैसे हुआ, 3/t ऐसे हुआ अनंता बच्चे, x अपॉन वाई को मैंने t लिया है, तो x अपॉन वाई को अगर मैंने t लिया तो y अपॉन x 1/t होगा ना बच्चे। यहां पर 3 into y अपॉन x है, तो इफ x अपॉन y इक्वल्स टू t, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y अपॉन x, 1/t। ठीक है, चलिए, तो 12 4 जा 48, सम कितना था 90, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सम पॉजिटिव है, तो दोनों नंबर कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 48 और सम 90, तो 16 एंड 3, तो व्हाट आर द रूट्स, क्या होगी t की वैल्यू 16/4 एंड 3/4, तो या तो 4 होगा या फिर 3/4 होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या तो 4 या फिर 3/4, तो x अपॉन वाई मेरे यहां से आ गया 3/4, यही हमें कैलकुलेट करके बताना था। सो आई थिंक ऑप्शन ए मस्ट बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 माय डियर स्टूडेंट्स। देखो ध्यान से देखिए प्लीज, क्लियर? और अदरवाइज मैं फिर से बता रहा हूं, द मोस्ट सुटेबल वे ऑफ सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। अगर आप ऑप्शंस की हेल्प लेते हैं तो कंपैरेटिवली हमें उतना लिखना नहीं पड़ेगा, बड़े स्मूथली हम आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले a score up crash course for BBA HM 2021 my dear students. So enrollments are on for this batch, to join this batch as soon as possible my dear students. चलिए, let's discuss question number 5। बहुत ध्यान से पढ़िएगा प्लीज। इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, in a quadratic equation 3x square minus x minus 2 equals to 0, if the roots of this equation are alpha and beta, इसके रूट्स हमें क्या गिवन थे, अल्फा और बीटा गिवन थे, तो we have to find out the value of alpha की पावर 4। नतरेश बच्चे ऑप्शन की हेल्प से ऐसे कर देंगे ना, देखो उसने बोला कि सम ऑफ फ्रैक्शन एंड 3 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, तो अगर मुझे मानो ये वाला ऑप्शन चेक करना है, तो 4/5 में अगर मैं इसका 3 टाइम्स 12/5 ऐड करूं तो 16/5 आएगा, सॉरी रेसिप्रोकल का 3 टाइम्स, तो 4/5 में अगर मैं 3 टाइम्स ऑफ 5/4 ऐड करूं तो 19/4 आना चाहिए। अगर आ रहा है तो ठीक है, वरना गलत है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो फ्रैक्शन की वैल्यू ऑप्शन से उठा के उसमें उसका रेसिप्रोकल का 3 टाइम्स ऐड करके चेक कर लेंगे, अगर वो 19/4 है तो ठीक है, वरना वो गलत है। चलिए, तो इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x square minus x minus 2 equals to 0, if the roots of this equation are alpha and beta,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसको हम दो तीन तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि सर यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो और इस वाले एक्सप्रेशन को ब्रेक कर दो इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई थिंक उससे भी आसान एक तरीका हो सकता है कि हम अल्फा और बीटा की वैल्यू ही कैलकुलेट कर लें। मेरे कहने का मतलब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ही कैलकुलेट कर लें, वो भी आसान तरीका था। तो 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 थे, मेरा हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आएगा, यहां से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आएगा। तो क्या क्या हो गए इसके रूट्स, एक तो 1 हो गया और एक माइनस 2/3 हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो what are the roots of this quadratic equation? 1 and minus 2/3। तो हमें अल्फा की वैल्यू भी पता है, हमें बीटा की वैल्यू भी पता है, तो यहां से हम अल्फा माइनस बीटा भी निकाल सकते हैं और अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 पहले देख लो कितना हो गया, 1 की पावर 4 प्लस माइनस 2/3 की पावर 4। एम आई राइट? तो हो गया बच्चों 1 प्लस 16/81। ठीक है, 1 प्लस 16/81 तो 97/81, 97/81 तो ये हो गया। और डिवाइड बाय अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया, 1 प्लस इनकी 5/3 हो गया। बस सोल्व कर दो। तो 97 इंटू 3 डिवाइड बाई 81 इंटू 5, तो मेरे ख्याल से 97/135, 97/135, that is option B must be the correct answer of question number 5। देखो ध्यान से सब लोग, क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान क्वेश्चन है। हाँ जी बच्चों, क्लियर है फिफ्थ भी? तो सबसे आसान तरीका था कि सर अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 अपॉन अल्फा माइनस बीटा अगर हमें कैलकुलेट करके बताना है तो यहां से हम पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू ही कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। यहां से पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो क्या क्या होंगे इस इक्वेशन के रूट्स? इस इक्वेशन के रूट्स हमारे होंगे 1 और माइनस 2/3। तो अल्फा कितना था 1, अल्फा कितना था 1, बीटा कितना था माइनस 2/3। तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 कितना हो गया 97/81 और अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया 1 माइनस माइनस 2/3। अनंता बच्चे 1 माइनस माइनस 2/3 इज 1 प्लस 2/3 एंड 1 प्लस 2/3 इज 5/3। एम आई राइट? ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा हमारा कितना आ गया 5/3। तो वी हैव टू कैलकुलेट 97/81 अपॉन 5/3। क्या होगा फाइनल आंसर 97/135। क्लियर? कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? चलिए लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6 और देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, प्लीज। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6 तो मेरे को थोड़ा सा मिसप्रिंट इसमें लग रही है। उसने बोला अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। इसमें तो मिसप्रिंटिंग। चलो सेवंथ करते हैं, सेवंथ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7। देखो फटाफट क्या पूछा है 7th में। फर्स्ट रीड इट वेरी केयरफुली प्लीज, क्वेश्चन नंबर 7, फिर इसको डिस्कस करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 7 विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। फटाफट पढ़ो सब लोग।
चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं क्या पूछा है। For a quadratic equation x square minus a minus 3x minus a minus 2 equals to 0, m and n are the roots। तो बच्चों x स्क्वायर माइनस a माइनस 3 इंटू एक्स माइनस a प्लस 2 लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स क्या थे हमारे? इसके रूट्स हमें गिवन थे m और n थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स m प्लस n कितना होगा हमारा? सम ऑफ द रूट्स m प्लस n हमारा होता है माइनस b अपॉन a, तो a माइनस 3 हो गया, एम आई राइट? और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स m इंटू n कितना होता है हमारा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स m इंटू n हमारा होता है c अपॉन a, तो कितना हो गया? माइनस a प्लस 2, एम आई राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर माइनस a minus 3 into x minus a plus 2 equals to 0. So m and n are the roots of this quadratic equation. So first of all, what will be the sum of the roots m plus n minus b upon a, so a minus 3, and what will be the product of the roots m into n, c upon a minus a plus 2. Now we have to find out the minimum possible value of m square plus n square. तो पहले देख लेते हैं कि m square plus n square होगा क्या। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हमारा हो गया प्यारे बच्चों m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2 m एम आई राइट? ठीक है भाई। तो m प्लस n कितना था? a माइनस 3, तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 m इंटू n कितना है? माइनस a प्लस 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो मेरा हो गया a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a प्लस 2a प्लस 4, तो ये आ गया प्यारे बच्चों हमारा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 प्लस 9। ठीक, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 प्लस 9 कैन ऑल्सो बी रिटन एज a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, एम आई राइट? अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे a माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस 9 की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है, मिनिमम वैल्यू, तो बच्चे a माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो ये कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0, और 0 प्लस 9 हमारा क्या होता है? 9। तो 9 विल बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, और आज हम ये तक रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। पहले सब लोग बताओ क्वेश्चन नंबर 7 के किसी स्टेप में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क, और अगर ये क्लियर है तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड रेट दिस सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, लाइक एंड शेयर दिस सेशन as maximum as possible with your friends within your group, my dear students. चलिए, so that's all for today. Thank you so much. Now let's look some ongoing batch on Gradeup. So enrollments are on for the batch IPM 2021 Booster Crash Course Batch 2. So enrollments are on for this batch also, so you can join this batch as soon as possible. Enrollments are also on for Prepare with India's Best Faculty to join IPM 2021 Booster Crash Course. Enrollments are also on for this batch, my dear students. For any course related query, you can call upon these two numbers. तो किसी भी तरह की query के लिए you can call upon these two numbers, my dear students. And also do not forget to subscribe YouTube channel of Gradeup and press the bell icon to get notification for all new videos, all new classes, my dear students. हाँ जी अनंता बच्चे, आई डोंट नो कि ये क्यों नहीं हुआ, ये तो आप ग्रेडअप के हेल्प डेस्क पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। आई डू नॉट हैव द शेड्यूल ऑफ दिस फैकल्टी। चलिए तो लेट्स, ठीक है, और जैसे मैंने बोला from tomorrow onwards we are going to start a mini series that is based on lines, angles and triangles, my dear students. Same timings, that is 3:30 p.m. so try not to miss even a single session of any mini series, my dear students. That's, thank you so much. That's all for today. All the best.